Hello everyone, welcome back to my channel Awesome Learning, and in today's topic we are going to discuss about transcription. We have already finished our previous topics where we have studied about the replication. DNA replication was over. Now we have to do the next step, that is transcription. Now children, as you have done in the central dogma that DNA can replicate and then DNA can transcribe into a messenger RNA, and then that messenger RNA will be translated into proteins. So this central dogma will now be studied in detail. So the first step today we will do is transcription. So children, the basic things that we know here are that the genetic material is stored in the form of DNA in most of the organisms. In humans, the nucleus of the cell contains 3 into 10 to the power 9 base pairs of DNA distributed over 23 pairs of chromosomes, right? Only number of chromosomes are 23, but these 23 pair of chromosomes contain these many base pairs. Each cell has 2 copies of this genetic material. This collectively is known as a human genome. That means collection of all the DNA sequences, collection of all the base pair sequencing, collection of everything where we include the nucleotides and everything that is known as the human genome. Now children, human genome contains about 3000 genes, each of which codes for certain proteins. So as we know that all the genes code for, these are the codes, and they code for what? They code for a particular type of proteins. Although thousands of genes in human DNA code for proteins, do you know that large stretches of DNA in human genome are transcribed, but they do not code for any proteins? ओके हमने बोला कि ऑलमोस्ट 30,000 जीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, बट इतने बड़े डीएनए सीक्वेंसिंग में लार्ज अमाउंट है जो डीएनए का वो ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, बट दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स. तो ऐसा डीएनए सीक्वेंस which do not code for any protein, those regions of DNA which do not code for any protein, they are called interons. Okay, they do not code for any protein, they are called interons. और क्योंकि मैंने कहा ये लार्ज अमाउंट है, लार्ज अमाउंट डीएनए का ऐसा है जो किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करता, जिसको हम कहते हैं इंटरॉन्स. तो कितना 95% ऑफ द जीनोम इंटरॉन्स है. ओके, सो सम ऑफ दीज नॉन कोडिंग, ये जो नॉन कोडिंग डीएनए है कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, बट purpose, you see, some of these non-coding DNA controls the gene expression, but purpose of much is not yet understood. यानी इंटरॉन्स में कुछ इंटरॉन्स का काम जो है वो जीन एक्सप्रेशन का है, बट मैक्सिमम इंटरॉन्स के काम के बारे में अभी हमें नहीं पता. वी डू नॉट नो अबाउट देम. So we know that all the information of human genome is coded in the DNA in genes in the form of nucleotide base pairs. ये तो हम जानते हैं कि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स में है, एंड हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, राइट. Now how this coded information is used? हम कैसे इस coded information को यूज़ करेंगे to produce functional products? और हमारे फंक्शनल प्रोडक्ट्स क्या हैं? द प्रोटीन्स. सो ये जो प्रोसीजर है कि कैसे कोडेड इंफॉर्मेशन से कोडिंग लेकर प्रोटीन्स होंगे, फंक्शनल प्रोटीन्स बनेंगे, और उस प्रोटीन से आगे की जीन एक्सप्रेशन होगी, ये सारी की सारी जो स्टडी है, दिस इज़ डन अंडर द टॉपिक जीन एक्सप्रेशन. ओके, कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है.
तो जीन एक्सप्रेशन बेटा इज़ ऑफ टू टाइप्स. इट इज़ डन इन टू स्टेप्स रादर आई शुड से. वन इज़ ट्रांसक्रिप्शन and the other one is translation. Okay, so let's see what is transcription. Copying of coded information. अगर आपको सेंट्रल डॉगमा याद हो, अगर थोड़ा सा लेट मी फाइंड आउट सम स्पेस हियर. अगर आपको सेंट्रल डॉगमा याद हो तो आपने क्या किया था, डीएनए ये जो रेप्लिकेट हो गया था, उसके बाद DNA was replicated into RNA and then RNA was replicated into RNA से बना प्रोटीन. तो now this is transcription and this is translation. तो अभी हम ये चीज़ पोर्शन पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में कि DNA जो है अपने आप से कैसे RNA बनाता है, राइट. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है कि कॉपिंग ऑफ कोडेड इंफॉर्मेशन, डीएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके कॉपी करके हमको आरएनए बनाना है ना. एंड दिस प्रोसीजर विल टेक प्लेस वेयर, इट विल टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. सो फ्रॉम डीएनए वी हैव टू मेक एन आरएनए by using the coded information of this DNA. So this is called transcription, right? And then what is translation? यहाँ जो RNA बना, जो भी RNA यहाँ बना, that RNA molecule leaves the nucleus. कहाँ बना RNA? I told you it will take place inside the nucleus. तो जब RNA बन गया, it will leave the nucleus and the information of this RNA molecule is used to produce functional gene products, that is the proteins, and this step is known as translation. ठीक है. So in this video we are going to discuss only about transcription. Okay children, so let's begin with the transcription part. Process of transcription takes place in two broad steps beta. The first is the enzyme RNA polymerase, okay, forms a pre-messenger RNA molecule. पहला स्टेप क्या होगा कि हम RNA बनाएंगे, बट जो RNA बनेगा that will be pre-mRNA. That means not final product, that will be pre-messenger RNA molecule, and this will happen in the nucleus by using the base pair complementarity to the base sequence of the DNA. यानी हमारे को DNA का एक स्ट्रैंड मिलेगा, उस DNA की सीक्वेंस को यूज़ करके हम RNA बनाएंगे. तो बेस ये वाले DNA के जो भी बेस पेयर्स होंगे उनके साथ कॉम्प्लीमेंटारिटी फॉलो करके हम RNA बनाएंगे. एंड ये जो RNA बनेगा, दिस विल नॉट बी द फाइनल mRNA, इट विल बी pre-mRNA. ये फर्स्ट स्टेप है. द सेकेंड स्टेप इज़ द pre-mRNA जो है उसको थोड़ा सा एडिटिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है. फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले थोड़ी सी एडिशन होगी, उसमें एडिटिंग होगी और कुछ एंजाइम्स यूज़ होंगे इस एडिटिंग को करने के लिए, और हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होगा यानी फाइनल प्रोडक्ट जो होगा mRNA बन जाएगा, विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो दो स्टेप्स. पहला स्टेप द फॉर्मेशन ऑफ pre-mRNA एंड सेकेंड स्टेप द फाइनल mRNA आफ्टर फ्यू एडिटिंग पार्ट इज़ डन. Now let's begin with the procedure of transcription. कैसे होगा? Let's look at the first section, यानी the first step, this step, that is the formation of pre-mRNA. तो बेटा for the first step, it is again divided into three steps, that is initiation, elongation and termination, right? And the main enzymes involved in this process of transcription is RNA polymerase. Now RNA polymerase has the main job of copying the information of DNA to the new RNA molecule. As I told you कि DNA से ही हमने RNA बनाना है, तो DNA की बेस सीक्वेंस को कॉपी करना है, DNA के बेस सीक्वेंस को यूज़ करके कॉपी करना है टू मेक अ न्यू RNA molecule, राइट. तो इस काम को करने में कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? दैट इज़ RNA polymerase. ओके. RNA polymerase builds the new strand. Always remember from 5' to 3'.
This will be done from which direction? From 5 prime to 3 prime, adding the nucleotides to the 3 dash end, that is 3 prime. यानी जो भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे वो 3 प्राइम की तरफ ऐड होते जाएंगे. ओके, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, न्यू वंस विल ऑलवेज बी एडेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम. 5 प्राइम की तरफ नए एडिशन नहीं होगी. जो भी न्यू एडिशंस होंगी वो 3 प्राइम की तरफ होंगी, न्यू एडिशंस. Okay, now the first step of the formation is initiation. As I told you, it is divided into 3 steps: initiation, elongation and termination. So the first step is initiation. Okay, now initiation, in which the enzyme RNA polymerase binds to the promoter region of the DNA. Children, now this is your suppose, let's take that, suppose this is a gene that needs transcription. तो इसमें हमने ये वाला gene, this green part is taken as the gene जिसको मुझे ट्रांसक्राइब करना है, राइट. तो क्योंकि मुझे इस जीन को ट्रांसक्राइब करना है, दिस इज़ द रीजन जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो ठीक इस रीजन के सामने एक सीक्वेंस है, यू सी, ठीक है, एक सीक्वेंस है, एंड दिस इज़ द प्रमोटर सीक्वेंस, प्रमोटर जीन सीक्वेंस. ठीक है, तो इनिशिएशन यहीं से स्टार्ट होगा, इन विच द एंजाइम RNA पॉलीमरेज विल बाइंड हियर. एंजाइम RNA पॉलीमरेज विल बाइंड हियर टू द प्रमोटर रीजन ऑफ द DNA. ठीक है, दिस इज़ द DNA सीक्वेंस है ना, DNA डबल स्ट्रैंडेड है, देख लो, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, और ये मेरा प्रमोटर रीजन है. तो RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर के साथ बाइंड अप हो गया, राइट. नाउ व्हाट हैपन्स एट द बिगिनिंग ऑफ दिस जीन, there is a sequence of base pair known as the promoter region. As I told you, the promoter region serves as a guide for whom? It is the guide for RNA polymerase enzyme, which tells the enzyme RNA polymerase where to attach. प्रमोटर बताता है RNA polymerase को, आइए और यहाँ पर आकर मेरे साथ अटैच हो जाइए. ठीक है, दिस इज़ व्हाट हैपन्स when promoter is activated और RNA polymerase आके promoter के साथ bind हो जाता है. Now once the RNA polymerase binds to the promoter region, it will separate the 2 strands of DNA. See, जैसे ही प्रमोटर आके RNA polymerase आके प्रमोटर के साथ बाइंड होता है, जैसे ही RNA polymerase प्रमोटर के साथ आकर बाइंड होता है, तो DNA के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. देखो, दोनों पहले आपस में अटैच थे ना, बाइंडेड अप थे, दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि RNA पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ आके बाइंड अप हो गया, तो DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए. तो क्या हुआ? सिंगल स्ट्रैंड हो गया. अब ये एक सिंगल स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा सिंगल स्ट्रैंड हो गया. सो प्रोवाइडिंग सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट. हमें RNA को बनाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए DNA के दोनों स्ट्रैंड एक साथ नहीं चाहिए, हमें एक ही स्ट्रैंड की ज़रूरत है. तो उसके लिए हमने क्या करा, RNA पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ अटैच करा. जैसे ही RNA पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ जाके अटैच होता है, DNA के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. तो जैसे ही DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, हमें तो मौका मिला ना, सिंगल टेम्पलेट मिला, हमें मौका मिला, है ना. तो DNA का एक सिंगल स्ट्रैंड मिल गया हमें. नाउ ओनली वन ऑफ दीज स्ट्रैंड्स इज़ यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन. इन दोनों स्ट्रैंड्स में से सिर्फ एक स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज़ होगा, और जो भी स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज़ होगा दैट इज़ नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड्स आर ऑलवेज फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन. अब रीज़न बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्यों भाई हम टेम्पलेट DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड सिर्फ यही वाला क्यों लेंगे 3' 5'? Because of the fact that RNA polymerase can only synthesize new strands from 5' to 3'. मेरे को ये बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, अगर आपको याद हो, कि RNA polymerase will always build a new strand from 5' to 3'. तो अगर RNA polymerase 5' to 3' ही बनेगा,
तो उसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड मुझे लेना है एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो मैं कौन सा लूँगी? उल्टा ही लूँगी ना, 3' to 5'। तो इसलिए जो मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो कौन सा होगा? फ्रॉम 3' to 5'। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट, ये भी लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए, कि RNA पॉलीमरेज कैन ओनली सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन, सो इट कैन ओनली यूज़ अ स्ट्रैंड ऑफ DNA रनिंग फ्रॉम 3' to 5' डायरेक्शन। तो ये वाला स्ट्रैंड उसके लिए टेम्परेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगा। अंडरस्टूड? फर्स्ट स्टेप में क्या था? स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है, ट्रिगर करना है, शुरुआत करनी है। और कैसे हुई शुरुआत? RNA पॉलीमरेज ने जाके प्रोमोटर के साथ बाइंड किया। जैसे ही उसने प्रोमोटर के साथ बाइंड किया, DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब हमारे लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन है? जो 3' to 5' है, वो हमारे लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब हम सेकेंड स्टेप शुरू करते हैं बेटा, इलोंगेशन। नाउ सेकेंड स्टेप नाम से ही समझ आ रहा है कि इलोंगेट। तो क्या इलोंगेट करना है? RNA की चेन इलोंगेट होनी चाहिए। नाउ विच इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपी? यहाँ पे अब हमको कॉपी करनी है द बेसिस ऑन द DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड टू फॉर्म द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड। तो जो भी बेसिस DNA टेम्पलेट पे जो भी बेसिस हैं, DNA का मैंने स्ट्रैंड अलग कर लिया ना, मैंने DNA के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट करके उसमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड चुन लिया। कौन सा है मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड? 3' to 5' वाला। अब उस पर जो भी मेरी सीक्वेंस है, सपोज उस पर मेरी सीक्वेंस है A, T, C, G जो भी है, तो ठीक उसके नीचे अब मेरा RNA की स्ट्रैंड बनने जाएगी और वो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। A के जगह एक अगर ऊपर A है तो नीचे क्या आ जाएगा? U क्यों? क्योंकि ये RNA है। अगर ऊपर G है तो नीचे क्या आ जाएगा? C। अगर ऊपर C है तो नीचे क्या आ जाएगा? G। समझ गए? तो दिस इज़ हाउ एक टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज़ करके RNA का नया स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। अब RNA पॉलीमरेज uses the nucleotides according to the base pairs complementarity rule to create RNA copy। ये तो समझा ही दिया मैंने। अर्लियर हमें पता है कि ये भी मैंने आपके लिए लिख दिया था नोट्स में। अर्लियर वी हैड स्टडीड कि DNA पॉलीमरेज ने रेप्लिकेशन के टाइम पे अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी बनाई। याद है ना, हमने किया रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन। तो जब आइडेंटिकल कॉपी बनी थी तो A के वॉज पेयर्ड विद T एंड C वॉज पेयर्ड विद G। लेकिन अब हमको यहाँ RNA बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इन ट्रांसक्रिप्शन RNA मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हुआ है वो दैट विल कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। यहाँ पर अब T नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यूरासिल। बाकी सब सेम है, G के सामने C या C के सामने G ही आएगा, बट थाइमिन की जगह एवरीवेयर इट विल बी यूरासिल। सो देयर आर नो T's इन द न्यू स्ट्रैंड ऑफ RNA में कहीं भी आपको T नहीं दिखेगा। Whenever RNA पॉलीमरेज डिटेक्ट्स द बेस A, जब भी RNA पॉलीमरेज A रीड करेगा तो वो उसके सामने टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जब भी वो A रीड करेगा तो वो उसके सामने क्या लेकर आएगा? यूरासिल ऐड करेगा। समझे? ठीक है। दिस इज़ हाउ एंजाइम RNA पॉलीमरेज एड्स न्यू बेस पेयर्स। और ये न्यू बेस पेयर्स किस तरफ से जुड़ते जाएंगे? 3' एंड पे। समझे? जो भी नया चीज़, नया बेस पेयर जो भी ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा? 3' एंड पे ऐड होगा। बिकॉज एडिशन, RNA में एडिशन सिर्फ एक ही साइड होगी, दैट इज़ 3'। 3' से चेंज जो है वो बढ़ती जाएगी आगे की तरफ। ओके, ऑफ द ग्रोइंग RNA चेन एंड दिस इज़ नोन एज इलोंगेशन। तो जितनी भी आपका DNA का टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जितना लंबा भी आपका DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ऐसे RNA भी बढ़ता जाएगा और इलोंगेशन होती जाएगी। राइट? सो दिस इज़ हाउ आई हैव शोन यू। ये देखो RNA स्ट्रैंड बढ़ रहा है। ओके, DNA टेम्पलेट हमने कौन सा लेना था? हमेशा 3' to 5' लेंगे, और RNA जो होगा दैट इज़ 5' to 3'। तो अब अगर कोई बेस पेयर जुड़ेगा तो वो इधर जुड़ेगा, इधर 3' में, यहाँ से चेन इलोंगेट होगी। समझ गए? ठीक है। न्यू चेन ऑफ RNA इज सिंथेसाइज्ड। सेकेंड स्टेप डन, इलोंगेशन डन। नाउ थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। ऑफ कोर्स
ये स्ट्रैंड, ये वाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये एक लिमिटेड एरिया में ही है ये वाला जीन सीक्वेंसिंग, तो आरएनए को भी रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना है, राइट। सो जस्ट लाइक वी हैड अ सीक्वेंस ऑफ जीन नोन एज प्रमोटर, जैसे हमारे पास एक जीन सीक्वेंस था जो प्रमोटर की तरह बिहेव कर रहा था, वैसे ही हमारे पास यहाँ एक जीन सीक्वेंस है जो टर्मिनेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जब इसके साथ बाइंड हुआ, उसने रीडिंग करी, आरएनए पॉलीमरेज ने जब इन सीक्वेंस को रीड करा तो उसने बोला अरे ये तो प्रमोटर है, उसने रीड किया प्रमोटर, चलो जी काम शुरू करो। ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पहुँचेगा तो वो क्या रीड करेगा सीक्वेंस देख के कि रुक जाओ, ये जो यहाँ जो सीक्वेंस होंगे वो टर्मिनेशन के सीक्वेंस होंगे, तो ये सिग्नल दे रहा है स्टॉप द वर्क, स्टॉप द इलोंगेशन वर्क और द ट्रांसक्रिप्शन वर्क शुड बी स्टॉप। So promoter gives the signal to start the transcription. Okay, so we have a region of sequence gene which gives the enzyme a signal where to stop. तो एक रीजन ऐसा है जो सिग्नल देता है where to start, तो सिमिलरली एक रीजन ऐसा है जो सिग्नल देता है where to stop. So this region is called terminator and the signals that RNA transcript is now complete. ठीक है, तो ये टर्मिनेटर सिग्नल बता देते हैं कि हाँ भाई तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब तुम बैठ जाओ आराम से, नो मोर ट्रांसक्रिप्शन शुड बी डन। तो एक बार वंस द आरएनए पॉलीमरेज रीच द ट्रांसक्राइब द टर्मिनेटेड रीजन, जैसे ही वो पहुँचता है टर्मिनेटर पे, पहले तो वो पहुँचता है, रीच मतलब पहले वो पहुँचता है, फिर वो उस रीजन को ट्रांसक्राइब भी करता है, ठीक है। टर्मिनेटर रीजन को रीच करता है, फिर उसको ट्रांसक्राइब भी करता है, तो न्यूली फॉर्म ट्रांसक्रिप्ट जो है वो काम वहाँ रुक जाता है, और जो आरएनए जो भी ट्रांसक्रिप्ट बन गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टॉप हुआ, तो ये जो बन गया दिस ट्रांसक्रिप्ट इज़ रिलीज्ड, नाउ इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। बना था ना, ये ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बन गया था, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया ना, यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है। तो जब स्टॉप कोडॉन तक पहुँचता है तो अब ये कॉम्प्लेक्स टूटता है और ये जो आरएनए का जो ये सीक्वेंस है ये रिलीज़ हो जाता है, ओके, इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस रिलीज्ड आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, ये जो अलग हो गया रिलीज्ड टुकड़ा है जो आरएनए का, दिस इज़ प्री मैसेंजर आरएनए और प्री एमआरएनए। तो अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है हमारा, राइट। तो याद है मैंने कहा था 2 स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है प्री एमआरएनए बनेगा, सेकंड स्टेप है कि हम इस प्री को एडिटिंग करके मैच्योर बनाएंगे, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, शोज़ दैट दिस एमआरएनए इज़ नॉट रेडी टू लीव द न्यूक्लियस। तो अब हम कैसे इस प्री एमआरएनए को कन्वर्ट करेंगे मैच्योर एमआरएनए मॉलिक्यूल में, लेट्स सी। तो इमेजिन करो कि यू हैव रिटन और पब्लिश्ड अ बुक, और यू हैव रिटन अ बुक और आप उसकी प्रिंटिंग देने जा रहे हो, तो क्या आप खाली पेजेस दे दोगे? आप पेजेस नहीं दे सकते ना, आप बाज़ार में सिर्फ पेजेस के साथ उस बुक को नहीं बेच सकते, आपको उस बुक का एक फ्रंट पेज चाहिए, एक बैक पेज चाहिए, राइट। फिर आप उस बुक की प्रूफ रीडिंग करोगे, बाई चांस कोई अनवांटेड अनएडिटेड पेज बीच में आ गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कुछ रॉन्ग आ गया, तो वो भी तो आपने हटाना है, वो आप डिलीट करोगे या नहीं करोगे? तो ये काम हमने सेकेंड स्टेप में करना है, ठीक है। दिस इज़ तभी इसको हम बोले ना, हम एमआरएनए को एडिट करके मैच्योर बनाएंगे, तो ये एडिटिंग पोर्शन हम करेंगे। नाउ द 2 प्रोसेसेस इज़ एसेंशियल। प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स इन द एडिशन ऑफ कैप। अब ये मेरा एमआरएनए था, देखो ये मेरा एमआरएनए था जो प्री एमआरएनए था, यानी मैच्योर नहीं था, ये मेरा प्री एमआरएनए था। तो मैंने क्या करा, व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव एडेड अ कैप एंड अ टेल। सो दिस इज़ माय कैप, ओके, एंड दिस इज़ द टेल। सो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ कैप एंड अ टेल टू द प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल। अब हमने ऐसा क्यों करा, हमने क्यों कैप और टेल, यही जो फ्रंट और बैक पेज लगाया ना, कवर लगाना ज़रूरी है। So these caps and tails, what are they? Actually they are short amino acid sequence. They are short amino acid sequence which will protect the pre-mRNA molecule. Why? क्यों चाहिए? अब pre-mRNA को किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए? तो बेटा ये जो pre-mRNA के जो ये ends है ना, ये ends, this and this portion, pre-mRNA के जो ये free ends हैं, they are very liable. Liable मतलब
इनके ऊपर बहुत जल्दी कोई भी एंजाइम का अटैक हो सकता है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो इन फ्री एंड्स पे अटैक कर सकते हैं, तो उनको उस एंजाइम अटैक से बचाने के लिए एक कैप और एक टेल लगा दी जाती है जो उनके लिए एक कवर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, प्री mRNA के लिए कवर की तरह बिहेव करती है। चलो जी, कवर तो लग गया हमारा। अब हम बात करते हैं वो जो अनवांटेड बात पेजेस की बात है उसका देखते हैं। तो देयर आर रिमूवल ऑफ अनवांटेड और जंक सीक्वेंसेस। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस बीच में आ जाते हैं जो अनवांटेड है, जंक है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे सीक्वेंसेस को हमको रिमूव करना है फ्रॉम mRNA। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। So this is also known as, now these junk sequences are known as introns। ये मैंने beginning में भी बताया था आपको। Unwanted sequences और junk sequences are called introns, and the process of removal of introns is called RNA splicing। splice कर देना। So children, the RNA protein complex, ठीक है, RNA protein complex known as spliceosome रिमूव्स दीज नॉन कोडिंग पार्ट्स। ये इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट्स है। ये मैंने बिगनिंग में बताया था कि बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जो कोड ही नहीं करते किसी चीज़ के लिए, है ना। तो ये जो स्पाइसियोजोम है ना, प्रोटीन आरएनए का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। प्रोटीन और आरएनए की एक जोड़ी है। प्रोटीन आरएनए की जोड़ी जो है वो सीज़र का काम कर रही है, स्पाइसियोजोम यानी सीज़र। और वो क्या करती है, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस और पार्ट्स को रिमूव कर देती है। तो बीच बीच में जो नॉन कोडिंग पार्ट्स जो टुकड़े कट गए या रिमूव हो गए, तो बाकी का जो पोर्शन है, जो कोडिंग पार्ट है, जो एक्चुअल पार्ट है, द रेस्ट ऑफ आरएनए इज़ जॉइंड टू क्रिएट अ मैच्योर mRNA। यहाँ पर आकर हमारा मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन गया, यानी अब हमारा ट्रांसक्रिप्शन का फाइनल प्रोडक्ट रेडी है। समझ गए? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि नॉन कोडिंग अनवांटेड पोर्शंस कट कर दिए, तो जो ज़रूरी पोर्शंस हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ के एक फंक्शनल mRNA क्रिएट किया गया, एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ